Very warm welcome to all the students of class 9th. My name is Ujwal and I will be today taking your maths class for our polynomials. Students, we have already started our polynomial in our last class, and by the time we have gone through the algebraic expressions, the polynomials, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. उसके अलावा वी हैव स्टडीड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड इन द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड वी हैव आल्सो सीन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of number of terms as well as on the basis of degree of the polynomial. Today we will be starting our class with a revision of degree of the polynomial. We have discussed in earlier class that degree of the polynomial is the maximum power of any variable used in the polynomial. Like we are having x square plus 7x cube minus 4x plus 2. Here we are using this x as a variable in this polynomial for 3 times. This is the first x we have used here with the power 2. The second time x is used here with the power 3, and third time we have used our x as a variable with the power 1. We have used our x for 3 times and it is having different set of powers 2, 3 and 4. Now the question is saying you have to tell the degree of this polynomial, or the definition of this degree of polynomial is saying that the maximum power used for any variable in a polynomial is called degree of the polynomial. तो यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है. तो मैक्सिमम पावर के लिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ये रही 3. तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब एक खास तरह का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों को बता देते हैं. यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हमारे सामने जो पॉलिनोमियल आया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल x यूज किया गया. लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, जैसे आपसे ये कह दिया जाए 6x क्यूब वाई स्क्वायर z माइनस 19x पावर 4 वाई z स्क्वायर प्लस 2x पावर 5 z पावर 3. हमसे कह रहा है क्वेश्चन की अब इसकी डिग्री आपने बतानी है. We have to tell the degree of this type of polynomial where the number of variables used here are more than 1. Just see in the first term we have used 3 variables. Second term we have used 3 variables, and in the third term we have used 2 variables x and z, and we are supposed to tell the degree of this polynomial. To find out the degree of this type of polynomial, we will take each term one by one and add all the powers used for x, y and z. Like in this term 3 variables are used. X is used for 3 times, plus y is used for 2 times, plus z is used for 1 time. So 3 plus 3, the power of this term is 6. Similarly, here also in the second term 3 variables are used, and x is used for 4 times, y is used for 1 time, and z is used for 2 times. So 4 plus 1 5 plus 2 7. The power of the second term is 7. Now come on to the third term, 2x power 5 z cube. Here x is used for 5 times and z is used for 3 times. So the total power of this term is 8. Now we are having 3 terms in this polynomial, and we have already got the powers of all the 3 terms. The first term is having power 6, second term is having power 7, and third term is having power 8. And according to the definition of the degree of polynomial, the maximum power
is known as degree of the polynomial. Therefore we can say that the degree of this polynomial is 8. ये आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं. नाउ वी विल बी डायरेक्टली गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो सॉल्यूशन है, जो फैक्टराइजेशन है, उसको करने का क्या तरीका है. तो वर्बल मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, जैसा कि 8th क्लास के भी फैक्टराइजेशन के चैप्टर में था. लेकिन यहाँ पे आपको मैं एकदम शुरुआत से इसको बताने जा रहा हूँ. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन, फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ polynomials. Suppose we are having this polynomial which is saying x square plus 7x plus 12. क्वेश्चन हमसे कहा कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करिए. एक बहुत जरूरी बात आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल के उतने फैक्टर हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री है. You just see here we are having degree 2 for this polynomial. So definitely we will be getting two factors for the polynomial x square plus 7x plus 12. अब इसमें करना क्या है वो आपको बता देता हूं. First of all we will take the coefficient of x square. तो x square के साथ मल्टीप्लाई में क्या चीज है, 1 है. हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1. और कांस्टेंट टर्म कौन है, 12 है. प्लस में है ये भी, प्लस में है ये भी, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया. वी हैव गॉट 12. यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो हमें प्लस का 12 मिल रहा है. अब मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, तो एक्स की टर्म जो होती है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसी को हम अपना मिडिल टर्म बोलते हैं. यानी यहां पे मिडिल टर्म क्या है, +7. अब हमने क्या करना है कि इस 7 के दो ऐसे पार्ट्स कर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए. और ध्यान से सुनिएगा, इस मिडिल टर्म 7 के दो ऐसे पार्ट कर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें वापस से 7 मिल जाए. और उन्हीं दोनों पार्ट्स को अगर ऐड किया जाए, सॉरी मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमें 12 मिल जाए विद द पॉजिटिव साइन. फिर से बोल रहा हूं, मिडिल टर्म 7 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वी गेट +7 हियर. और इन्हीं दोनों पार्ट को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो विल गेट +12 ओवर हियर. उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 12 को पकड़ा हमने और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम. अब दो पार्ट करने हैं, फैक्टर निकल के आ गए 3. हम क्लब करते हैं, क्लब किया मतलब इन दोनों को मिला करके एक टर्म बना दिया. तो 2 into 2 दिस इज 4 एंड दिस इज 3. दो पार्ट 4 और 3 हो सकते हैं. 4 + 3 करिए 7 मिल जाएगा. 4 into 3 करिए 12 मिल जाएगा. 4 3 12. तो ये हमारे पास पहली ही चांस में परफेक्ट वैल्यूज आ गई. हम अपने 7 का ब्रेकअप कर सकते हैं 4 और 3 में. 4 और 3 को ऐड कर दें तो हमें 7 मिल सकता है. 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 12 मिल सकता है. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग आवर फंक्शनिंग. इनिशियली क्वेश्चन वाज इन दिस शेप, x² + 7x + 12. नेक्स्ट स्टेप, x² + 7 को हमने ब्रेक किया, 3 + 4 लिख दिया. 3 + 4 यानी अभी भी 7 ही है. और 3 into 4 करेंगे वो 12 हो जाएगा. ये तो 7 हो गया, ये x यहां पे मैंने लगा दिया, +12. नाउ ओपन द ब्रैकेट. दिस x विल बी मल्टीप्लाइड विथ बोथ 3 and 4. दिस विल बिकम x² + 3x + 4x + 12. नाउ पेयर बना लिए हमने. यहां पे फर्स्ट पेयर में देखा तो दोनों ही टर्म्स के पास में x कॉमन था. वी हैव टेकन x एज कॉमन. तो यहां पे 2x थे, दो में से एक x तो कॉमन में चला गया, तो एक x बचा. प्लस 3 into x था, x चला गया कॉमन में,
तो हमारे पास 3 बच गया, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर यहां पे आए तो पूरे टर्म में देखिए सबसे पहले तो प्लस कॉमन है, ये 4 है और ये 4 इंटू 3 है, यानी इसके पास भी 4 है, तो हमने 4 को ही कॉमन निकाल लिया। x इनके पास है, इनके पास नहीं है, x कॉमन नहीं आ सकता है। 4x में से 4 कॉमन चला गया तो सिर्फ x बच गया, और प्लस ये 4 इंटू 3 था, 4 चला गया कॉमन में तो प्लस का 3 बच गया। अब पूरे टर्म को गौर से देखिए तो यहां पर भी x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है और यहां पर भी x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है। नाउ वी आर टेकिंग x प्लस 3 एज कॉमन। हमने x प्लस 3 को अगर कॉमन निकाल लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला x बच जाएगा और ये प्लस का 4 बच जाएगा। See, these are the two factors. X plus 3 is the first factor and x plus 4 is the second factor for our polynomial x square plus 7x plus 12. Now related to same topic, we will be discussing once again one more polynomial example that will be more helpful for you. Like take the example with minus sign also. This time I will be giving you example related to minus sign also. See, I am having one example for you, which is saying 10x square plus 3x minus 4। हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। अब हमने कुछ बातें जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में की थी, आइडेंटिफिकेशन इसका कह रहा है कि सर आई एम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम पावर इज 2, देयरफॉर आई विल बी हैविंग 2 फैक्टर्स। यानी हम जब भी इसको फैक्टराइज करेंगे हमें 2 फैक्टर इसके निकल करके आएंगे। प्रोसीजर आपको बताया था, सबसे पहले प्लस का 10 और कांस्टेंट टर्म यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 10 इंटू -4 माइनस का 40 और मिडिल टर्म में क्या रखा हुआ है, प्लस का 3 रखा हुआ है। अब हमें इस मिडिल टर्म 3 को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें प्लस का 3 मिल जाए, और उन्हीं दोनों पार्ट्स को विद द साइन मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 40 मिल जाए। उसके लिए हमने अपने 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए वी आर हैविंग डिवीजन बाय 2, 20 डिवीजन बाय 2, 10 division by 2, 5 and this is 5 one time. See, we are having 4 factors here, लेकिन हमें पार्ट्स कितने करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 इंटू 2 4 और 2 5 जा 10। 10 और 40 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा, लेकिन 10 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें 40 मिल जाएगा, लेकिन 10 और 4 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दें 3 नहीं मिलेगा। यानी ये दोनों चीजें हमारे काम की नहीं है। हमने क्या किया, 2 ग्रुप बनाना था, इस बार तीनों 2 एक साथ कर लिया और ये 5 अकेला, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये वाला क्या चीज है, ये अकेला का 5 है, तो 8 5 जा 40 हमें मिल रहा है, और 8 माइनस 5 करें तो हमें 3 भी मिल रहा है। हमारा काम बन गया। हमें जो सिचुएशन चाहिए थी कि 3 के ऐसे 2 पार्ट कर दीजिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर +3 मिल जाए, तो 8 माइनस 5 करेंगे हमें 3 मिल जाएगा, और उन्हीं दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करिए, 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 40 भी मिल रहा है। नाउ गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन, 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इस 3 की शक्ल बदल रहे, 8 और 5 के फॉर्म में लिखेंगे। 10x स्क्वायर प्लस दिस कैन बी रिटन एज 8 माइनस 5 x माइनस 4। यहां पे देखिए 8 माइनस 5 ये अभी भी प्लस का 3 है। ओपन द ब्रैकेट, दिस x विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स, दिस विल बिकम 10x स्क्वायर
प्लस इंटू प्लस प्लस 8 इंटू एक्स 8x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू एक्स 5x and minus 4. Now I am going for the pairing, the first pair and the second pair. ये 10 है और ये 8 है, ये 2 इंटू 5 है, ये 2 इंटू 4 है, तो यानी दोनों के पास 2 कॉमन है, हमने 2 को बाहर निकाल लिया। 2 बार x है, x स्क्वायर है तो 2 बार x है, और यहाँ पे 1 बार x है तो हमने 1 बार x को भी कॉमन निकाल दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, 10, 2 कॉमन चला गया तो 5 बच गया। 2 बार x था, 1 बार कॉमन चला गया तो 1 बार x बचा हुआ है। देन वी आर हैविंग प्लस साइन। दिस इज 2 इंटू 4, तो 2 इज एज कॉमन, तो 4 इज लेफ्ट ओवर हियर। 1 बार x था, सॉरी 4 था, वो कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा हुआ। दीज टू टर्म्स आर हैविंग फर्स्टली माइनस साइन एज कॉमन, तो हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया। उसके अलावा ये 5 इंटू 1 है, ये 4 इंटू 1 है, यानी दोनों के पास 1 कॉमन है। आई एम टेकिंग 1 एज कॉमन। -5 इंटू 1